Hello students, class ninth. This is me, Samuel sir, your English teacher. Today we are going to discuss the last undone discussion, that is the participle of perfect participle. So in the earlier videos we had discussed already about present participle, past participle, and today we have perfect participle. So today perfect participle that we are going to start, let us understand its meaning and in what conditions that the having plus v3 is used in a perfect participle. How do we will use, in what conditions? So let us understand by some of the example which I have written already in advance, and first we will begin with their meanings. So perfect participle, that means if the participle occurs prior to the principal verbs. Prior, that means principal verb से पहले, that means we use the perfect form of the participle. तो in this condition, ऐसे condition में हम लोग क्या use करेंगे? We will use perfect form of the participle by using having plus v3. So प्रिंसिपल वर्ब से पहले, प्रायर का मतलब होता है प्रिंसिपल वर्ब जो है उससे पहले हम लोग पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. तो कैसे कंडीशन में? यदि पार्टिसिपल अकर होता है प्रिंसिपल वर्ब से पहले, तो ऐसे उसमें हम लोग पार्टिसिपल हैविंग प्लस v3 यूज करते हैं. So let us understand by some of the example. See, having bought a book, I came back from the market. So here we have the first example, having bought. Having bought, it means that it's a the participle. ये क्या है? Perfect participle. This is perfect participle. Why it is perfect participle? Because यहाँ पर हम लोग का क्या है? Having plus bought. It's a v3. Bring bought. Buy bought, and bought is the v3. See, buy is the v1 and v2 is bought, and v3 is also same, it will be exist, bought. So bought is the v3 with having. So like I said, perfect participle having plus v3 होता है. So that's why in a sentence having plus v3. Why it is used having plus v3 in a sentence? See, after that, before that, there is what I said in a sentences occur prior to the principal verbs. Principal verb से पहले. That means I came back from the market. Came is a main verb, and here main verb, it is act like a principal verb, because this sentence it is a principal verb. ये principal it's a main sentences जिसे हम लोग इंडिफिनिट या इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं. तो ये प्रिंसिपल वर्ब है यहाँ पे. केम इज ए मेन वर्ब विच इज अ प्रिंसिपल सेंटेंस. तो इसीलिए ये मेन वर्ब से पहले हम लोग का जो भी यूज होता है वो हैविंग प्लस v3, उसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो ये कंडीशन से पहले मेन वर्ब से यानी कि प्रिंसिपल वर्ब से पहले हैविंग प्लस v3 यूज किया जाता है. तो दैट्स व्हाई वी हैव हियर. सेकंड वन, हैविंग वॉन अ प्राइज, अरमान फेल्ट हैप्पी.
तो हैविंग वॉन, हियर हैविंग, दिस वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब ये कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हियर हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल हो रहा है। इट इज इन दिस सेंटेंस इट इज यूज्ड हैविंग प्लस V3, दैट्स व्हाई V3 इज अ विन, V1 का विन, विन इज अ V1 and V2 is won, win, won, won. Again same V1, V2 and V3, and V3 is a verb 3 is a won. That's why having plus verb 3. So here we have principal verb is spelled. Principal verb is spelled. Before that there is having plus V3 is used. So in a sentences if the participle occur prior to the principal verb, यानी कि पार्टिसिपल अगर होता है, अकर होता है सेंटेंस में वो प्रिंसिपल वर्ब से पहले, तो ऐसे उसमें हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हियर इन अ सेंटेंसेस, बोथ इन अ सेंटेंसेस देयर आर परफेक्ट पार्टिसिपल, दैट इज हैविंग प्लस V3। सो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि हैविंग बाउट ए बुक, यानी कि कोई काम का होने के बाद दूसरा काम का होना, तो दैट मीन्स हैविंग बाउट अ बुक, यानी कि किताब खरीद कर आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट, में मार्केट से आया, किताब खरीद कर मैं मार्केट से आया, यानी कि कोई चीज आपका कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इन दैट सेंस हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल वी कैन यूज। सेकंड में भी हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी दैट हैविंग वॉन ए प्राइज, यानी कि प्राइज जीत कर या प्राइज जीतने के बाद अरमान क्या हो गया, फेल्ट हैप्पी, अरमान को खुशी हुई, यानी कि प्राइज जीत कर अरमान बहुत खुश हुआ। तो कोई चीज यहां पर एक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आफ्टर दैट साइमल्टेनियसली अदर एक्शंस, नेक्स्ट एक्शन इट इज इन नेक्स्ट एक्शन इट इज इन एक्शन, तो दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। तो एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन का शुरू होना या उसके बाद खत्म हो जाना, तो ऐसे सेंस में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। अगर मान लो सपोज दैट, अगर इस प्रकार का अगर हम लोग को सेंटेंस आए परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करने का, हाउ डू वी चेंज दीज सेंटेंसेस, है ना, सॉरी दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर कर ये सेंटेंस को, दिस गिवन सेंटेंस, हाउ डू वी गोना चेंज, इसको किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन चेंज आई अपलोडेड अ वीडियो, यहां पे देख सकते हैं आई अपलोडेड अ वीडियो एंड स्टार्टेड शेयरिंग विथ माय फ्रेंड्स। आई अपलोडेड अ वीडियो, यहां पर एक एक्शन खत्म हो गया है, फिर उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है, वो कौन सा एक्शन, स्टार्टेड शेयरिंग विथ माय फ्रेंड्स, यानी कि आई अपलोडेड अ वीडियो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हैविंग, सॉरी कैपिटल लेटर, हैविंग अपलोडेड V3, having uploaded a video, having uploaded a video, comma, I started sharing, sorry, friends, sharing with my फ्रेंड्स, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज हियर आई अपलोडेड अ वीडियो, हैविंग अपलोडेड अ वीडियो, कॉमा, ये आई इसके साथ चला जाए, आई स्टार्टेड शेयरिंग विथ माय फ्रेंड्स, यानी कि वीडियो अपलोड करने के बाद या वीडियो अपलोड करने के बाद आई स्टार्टेड अ शेयरिंग,
और मैंने अपने दोस्त के साथ ये वीडियो को शेयर करना शुरू किया। तो ये सेंस यानी कि फर्स्ट एक्शन इट इज कंप्लीटेड, देन नेक्स्ट सेंटेंस इट वाज स्टार्टेड। तो here another example we can see, he went to a restaurant, ate the food and came back। यानी कि एक एक्शन क्या है, he went to a restaurant, वो रेस्टोरेंट में गया, ate the food खाना खाया और वापस आया। तो here three things, three action it was done। ये तीन एक्शन इस सेंटेंस में खत्म हुआ है। तो फर्स्ट हाउ वी विल राइट, he went to a restaurant, having went का V3 gone, having gone to a restaurant, हम लोग रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्टोरेंट, इसको रेस्टोरेंट करके बोला जाता है। तो having gone to a restaurant, he ate the food, उसने खाना खाया और and came back। So like this we can change the sentences into by using perfect participle। perfect participle को हम लोग इस तरह से यूज करके बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। So students, I hope that you understood whatever I had discussed so far. So in the earlier videos till now we had discussed about the form of participle, and that are present participle, past participle and the perfect participle। So and also gerund we had discussed before the participle शुरू करने से पहले। तो पार्टिसिपल शुरू करने से पहले हम लोग ने gerund डिस्कस किए थे। I hope that you all understood whatever I had discussed from gerund to participle। So I have a homework for you all students class 9th। So from your grammar page number 92, that is exercise in grammar 55, page number 92, from 1 to 19, sorry from 1 to 20, these are the homework for you all। See you in the next video, till then goodbye, take care।